हरे कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर साकार है या निराकार है। तो इसको बताने से पहले हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक लेंगे। तो सबसे पहले वी विल चैंट सम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Bhagavad Gita as it is, chapter 2, verse number 2. Shri Bhagavanuvacha Kutastvakashmalam midam Vishme samupasthitam Anaryajishtam asvargyam Akirti Karamarjuna. Word to word meaning. Shri Bhagavanuvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Kutaha, where from? Tva, unto you. Kashmalam, dirtiness. Idam, this lamentation. Vishme, this hour of crisis. Samupasthitam, arrived. Anarya, person who do not know the value of life. Jushtam, practiced by. Aswargyam, that which does not lead to higher planets. Akirti, infamy. Karam, the cause of. Arjuna, O Arjun. Translation. The Supreme Personality Bhagwan said, My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the progressive values of life. They do not lead to higher planets but to infamy. Purport by Srila Prabhupada. Krishna and Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagwan throughout the Gita. Bhagwan is the ultimate in the Absolute Truth. Absolute Truth is realized in three phases of understanding, namely Brahman, or the impersonal all-pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and the Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In the Srimad Bhagavatam, this conception of the Absolute Truth is explained thus: Vadanti tattva tattvam yajnanam madavavyayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. The Absolute Truth is realized in three phases of understanding by the knower of the Absolute Truth, and all of them are identical. Such phases of the Absolute Truth are expressed as Brahman, Paramatma, and Bhagwan. These three divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has three different aspects, namely the sunshine, the sun surface, and the sun planet itself. One who studies the sunshine only is the preliminary student. One who understands the surface is further advanced, and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sunshine, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its impersonal nature may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the Absolute Truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to the knowledge of the Paramatma feature of the Absolute Truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the Absolute Truth. Therefore, the Bhaktas or the Transcendentalists who have realized the Bhagwan feature of the Absolute Truth are the topmost Transcendentalists, although all the students who are engaged in the study of the Absolute Truth are engaged in the same subject matter. The sunshine, the sun disk, the inner affairs of the sun planets cannot be separated from one another, and yet the students of the three different phases are not in the same category. The Sanskrit word Bhagwan is explained by the authority Parashar Muni, the father of the Vyasdev. The Supreme Personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation is called Bhagwan. There are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned, and very much detached, but no one can claim that he possesses all riches, all strength, etc. entirely. Only Krishna can claim this because he is the Supreme Personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, or Narayana, can possess opulence as fully as Krishna.
Therefore, it is concluded in the Brahm Samhita by the Lord Brahma himself that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is the primal Lord or Bhagwan known as Govinda, and he is the supreme cause of all causes. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. There are many personalities possessing the qualities of Bhagwan, but Krishna is the supreme because none can excel him. He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is the primal Lord, Govinda, and cause of all causes. In the Bhagavatam also there is a list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom many incarnations and personalities of Godhead expand. Ete chams kala pumsha Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridyanti Yuge Yuge. All the lists of the incarnation of the Godhead submitted herewith are either plenary expansions or parts of plenary expansions of the Supreme Godhead, but Krishna is the Supreme Personality of Godhead himself. Therefore, Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, the source of both the Super Soul and the impersonal Brahman. In the presence of the Supreme Personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsmen is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word kutas, wherefrom. Such unmanly sentiments were never expected from a person belonging to the civilized class of men known as Aryans. The word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have a civilization based on spiritual realization. Persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of the Absolute Truth, Vishnu or Bhagwan, and they are captivated by the external features of the material world. Therefore, they do not know what liberation is. Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. Although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. Om Jnanam Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। तो आज के श्लोक का जो पहला शब्द है वो है श्री भगवान उवाच, और श्रीला प्रभुपाद ने अपने परपट में इसे बहुत डिटेल से बताया है। तो इसको समझने के लिए जो श्लोक उन्होंने लिया है वो लिया है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय से, जो कहता है वदंती तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अदम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान की जो फेजेस हैं, 3 फेज को समझने के लिए हमें जो एग्जाम्पल लेना है वो सूरज का दिया है, और बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है क्योंकि सूरज के भी 3 फेजेस हैं और भगवान के भी 3 फेजेस हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए हमें सूरज का एग्जाम्पल, जैसे सुबह सुबह हम प्रातःकाल में जब उठते हैं तो सबसे पहले हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं प्रकाश ही सब कुछ है। जब हम थोड़ा सा और जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, हमें पता लगेगा ये प्रकाश सूर्य पे टिका हुआ है। और जब हम ग्रह के अंदर भी कैसे तरह प्रवेश कर जाएं तो हमें पता लगेगा कि वहाँ वैराइटीज़ ऑफ लिविंग्स हैं, वहाँ पे सूरज देवता हैं जो इस सूरज को कंट्रोल में कर रहे हैं। तो हमें वास्तव में ये देखने की वास्तव वहाँ पे लाइफ है। इसका मतलब हम आग में नहीं रह सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आग में नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं नित्य सर्वगतः स्थाणु। सर्वगतः मतलब जीव जो है सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह पाया जाएगा आपको, चाहे सूरज हो चाहे वो धरती हो। सूरज में जब हम देखेंगे तो देवता हैं, उनका जो शरीर है वहाँ पे जो आग का तत्व है वो अधिक पाया जाएगा।
जबकि धरती में जो हम देखेंगे तो यहाँ पे जल और धरती का जो तत्व है वो अधिक पाया जाता है। हम आग में नहीं रह सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आग में नहीं रह सकता। आप सूरज को छोड़िए, धरती पर ही ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो आग में रह सकते हैं। थर्मोफाइलस बैक्टीरिया जो पूरी प्रजाति है वो आग में रह सकती है, हम नहीं रह सकते, क्योंकि उसका जो शरीर परमेश्वर ने बना के भेजा है वो उसी के अनुसार है। ऐसे ही सूरज लोक में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो हमें सूरज देवता मिलते हैं तो उनका जो शरीर है वो आग का बना हुआ है, तो वो वहाँ पे सूटेबल आराम से रह सकते हैं। तो इसलिए जब हम जो सूर्य लोक में प्रवेश कर जाएगा तब उसको पता लगेगा कि वहाँ पर अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं, और सबसे जो कंट्रोल जो सूरज लोक को कर रहा है वो सूरज देवता हैं। तो सूरज देवता से सूरज लोक कंट्रोल हो रहा है और सूरज के प्रकाश सब जगह विद्यमान है, सब जगह पाया जाता है। तो ऐसे ही भगवान के भी 3 फेजेज़ हैं। जब भगवान के 3 फेजेज़ हैं तो उसमें भी आता है ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। तो सबसे पहला जो फेज़ है वो ब्रह्म ज्योति का है। ब्रह्म ज्योति मतलब प्रकाश। जब जो आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ते हैं तो उनका जो प्रथम साक्षात्कार होता है, जैसे सुबह सुबह सबसे पहले साक्षात्कार हमें प्रकाश का होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ने वालों को भी पहला जो प्रथम साक्षात्कार होता है वो भ्रमण ज्योति का होता है। और भ्रमण ज्योति में अगर वो सब कुछ समझ लें और वहीं पर रुक जाए और आगे ना बढ़ें तो फिर उनका जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए हमें ब्रह्म ज्योति से आगे बढ़ना चाहिए, और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा फीचर को हम समझ पाएंगे। जैसे सूर्य के ग्रह को हम समझते हैं, ये परमात्मा है वो सर्वत्र विद्यमान है, सबके हृदय में विद्यमान है। वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, परमात्मा तत्व। जैसे भगवान की सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो सर्वत्र विद्यमान है, जो सर्वत्र पाई जाती है। तो इसलिए जो परमात्मा जो फीचर है, जब हम भ्रमण ज्योति के आगे बढ़ेंगे तो हमें परमात्मा तत्व पहचान में आएगा, उसको हम समझ सकेंगे। और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो हमें भगवान तत्व को, हम भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को हम समझ पाएंगे। तो भगवान का जो विग्रह है वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो उनका विग्रह हमारा जैसा नहीं है। भले ही हम इस विग्रह से भी भगवान के इन 3 तत्वों को समझ सकते हैं। आजकल हमने देखा है कि वो जो थर्मामीटर आता है इंफ्रारेड वाला, वो एक्चुअली हमारे जो शरीर है इससे रेज निकलती है, इंफ्रारेड रेज, जिसको हमारी जो ये आँखें हैं ये परसीव नहीं कर सकती। तो वो जो रेज निकल रही हैं वो भी एक तरह से ब्रह्म ज्योति के समान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म ज्योति सब कुछ है। ब्रह्म ज्योति जिस पर टिकी हुई है, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह पे टिकी हुई है। तो सबसे जो श्रेष्ठ जो है, सबसे उच्चतम कोटि के जो आध्यात्मिक लोग माने जाएंगे, विभिन्न माने जाएंगे जो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को पूछते हैं। तो इसमें लड़ाई की बात नहीं है। जैसे एक ही क्लास के बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे 10वीं क्लास में भी साइंस को पढ़ाया जाता है, 12th में भी साइंस को पढ़ाया जाता है, और फिर आप प्रोफेशनल में चले जाए तो साइंस एक अलग ही दृष्टांत होता है। ऐसे ही आध्यात्मिकता में जो आगे बढ़ रहे हैं वो पहले निराकारवादी में जाते हैं, फिर वो परमात्मा में जाते हैं, और फिर वो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो भगवान का जो विग्रह है वो सच्चिदानंद है, उनका जो विग्रह है वो हमारे जैसा नहीं है। तो हमारा जो विग्रह है वो इसका अपोजिट है, असत, अचित और निरानंद से भरा पड़ा है हमारा। तो हमारा जो विग्रह है वो भगवान के विग्रह से बिल्कुल उल्टा है। ये तो अचित है, असत है, अचित है और निरानंद है। और लेकिन भगवान का जो विग्रह है वो सत्य चित्त आनंद से भरा पड़ा है। तो हमारे जो विग्रह है इससे हम उनको समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ये जो सारी सृष्टि है वो जो वास्तविक सृष्टि का प्रतिबिंब है। तो उसी प्रतिबिंब का स्वरूप हमारा ये शरीर भी है। तो हम इस शरीर से भी समझ सकते हैं भगवान के 3 फीचर्स को। तो पहला जो इंफ्रारेड रेज जो निकल रही थी, जो हम थर्मामीटर से आजकल नाप रहे हैं, आपने देखा होगा, तो वो भ्रमण ज्योति के समान है। दूसरा एक कॉन्शियसनेस जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है, मैं अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस हूँ, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ मैं अगर पिंच करूँगा तो पहचान जाऊँगा कि मेरे यहाँ पे पिंच किया गया। एक कॉन्शियसनेस फैली हुई है। ऐसी ही एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, पूरी सृष्टि में फैली हुई है। वो भगवान की कॉन्शियसनेस है, और वो भगवान की कॉन्शियसनेस परमात्मा के रूप में है जो सर्वत्र व्याप्त है। तो जब वो कॉन्शियसनेस सर्वत्र व्याप्त है तो जैसे इसका एग्जाम्पल जो सूरज का है, जो सूरज एक जगह होते हुए भी सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा नहीं भारत में सूरज का जो है वो अलग है और जो दूसरे कंट्रीज़ में देखेंगे सूरज अलग दिखेगा, नहीं, उधर भी वही सूरज है, भारत में भी वही सूरज है। भले ही वो एक सूरज है लेकिन वो सर्वत्र विद्यमान है।
सर्वत्र पाया जाता है। ऐसे ही भगवान एक जगह विद्यान में भी अपनी सुप्रीम कॉन्शियसनेस से सर्वत्र पाए जाते हैं, और वो है उनका परमात्मा फीचर। और तीसरा जो फीचर है वो हमारे शरीर में पाया जाएगा, वो हमारा स्वयं का शरीर, जिस पे कॉन्शियसनेस भी विद्यमान है, प्रतिष्ठित है, टिकी हुई है, जिस पे इंफ्रारेड रेज भी टिकी हुई है। और ऐसे ही सूरज में आप आगे जाएंगे तो आपको पाया लगेगा वहाँ पे एक सूर्य देवता हैं जो सूरज को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी पर ही सूर्य ग्रह प्रतिष्ठित है, और उसी पर ही सूर्य प्रकाश भी प्रतिष्ठित है। ऐसे ही भगवान का भी है। भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है उसी पर ही परमात्मा तत्व प्रतिष्ठित है, और उसी पर ही जो भ्रमण ज्योति भी प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार ये भगवान के 3 तत्व हैं। भगवान को इन 3 फीचर से जाना जाता है। विष्णु पुराण में भगवान की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भगतिं गणा। Bhagwan, the Supreme Personality of Godhead, is defined as one who is full of 6 opulence, that is, who has full strength, fame, wisdom, wealth, beauty and renunciation. दोस्तों यहाँ पे 6 ऑपुलेंस की बात की गई है, और इन 6 ऑपुलेंस में कोई एक भी अगर किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में हो तो वो उस अधिक व्यक्ति को आकर्षित बना देता है। लेकिन भगवान में ये 6 के 6 ऑपुलेंस फुल एकदम कंप्लीट फॉर्म में विद्यमान रहते हैं, स्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। तो ऐसे में भगवान कितने आकर्षित होंगे, हमें ये अनुमान हम इसका लगा पा सकते हैं इस तथ्य से। तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ, ताकत। तो भगवान की जो ताकत है, अब आप देखिए भगवान जब श्री कृष्ण भगवान जब इस धरती पर अवतरित हुए थे तो उस समय ऐसा नहीं है उन्होंने कोई योग किया था कि तपस्या की थी तब जाके उनमें ताकत आई थी। नहीं, वो बचपन से ही बड़े बड़े राक्षसों को मार रहे थे, अपने से कई कई गुना राक्षस जिनसे पूरे देवता तक हार जाते थे, उनको श्री कृष्ण ने बचपन में ही मार दिया था। दूसरा है, इससे उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है, इनमें कितनी स्ट्रेंथ है। और कहा जाता है कि अनंत शेष के ऊपर ही सारी सृष्टि विद्यमान है, तो उससे भी हम इनकी स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ भगवान में फुल में है। हो सकता है आप देखेंगे कि इस धरती पर जिसके पास जो शक्तिशाली होता है, जैसे भारत का जो खली है वो फेमस क्यों है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है। तो ऐसे जिसके पास स्ट्रेंथ होती है वो अपने आप फेमस हो जाता है, वो आकर्षित हो जाता है। ऐसी भगवान में इस सृष्टि की संपूर्ण जो स्ट्रेंथ है वो प्रतिष्ठित है, इसलिए भगवान कितने आकर्षित हो गए इसका हम अनुमान लगा पा सकते हैं। और दूसरा है फेम। भगवान जो है पूरी सृष्टि में फेमस हैं। सिर्फ इस जो हमारी जो जिसको हम देख सकते हैं प्रकट सृष्टि, और एक अप्रकट सृष्टि और है जिसको हम देख नहीं सकते, वहाँ पे भी फेमस हैं। और उनकी फेम का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं, आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण आए थे और त्रेता युग में श्री राम आए थे, वो आज तक भारतीयों के या समस्त जनता के हृदय में विद्यमान है, और उनकी पूजा की जा सकती है, उनकी पूजा की जाती है। तो वो उस समय कितने फेमस रहे होंगे। यहाँ पे जो फेम बताया गया है ये मलेच्छ वृत्ति वाला फेम नहीं है। मलेच्छ वृत्ति वाला जो फेम है वो तो औरंगजेब के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ है। ये मलेच्छ वृत्ति जो है वो सेक्स के ऊपर जाती ही नहीं है, वो सेक्स पे टिकती है। वो कार्य करेंगे तो भी सेक्स ही करेंगे, उनको हर चीज़ में सिर्फ सेक्स चाहिए होता है। ये मलेच्छ वृत्ति दूषित है। परमेश्वर का जो फेम है वो मलेच्छ वृत्ति वाला फेम नहीं है। मलेच्छ वृत्ति का जो फेम है वो सिर्फ सेक्स पर ही टिका रहता है। जो जितना ज़्यादा सेक्स करता है वो उतना ज़्यादा फेमस हो जाता है। जितना स्ट्रेंथ सेक्स में पाई जाएगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ माना जाएगा। ये मलेच्छों की वृत्तियाँ हैं। कलयुग में जो है शूद्र और मलेच्छ ही पाए जाते हैं आज के ज़माने में। तो भगवान का लेकिन जो फेम है वो सच्चिदानंद विग्रह का फेम है। उनका जो फेम पाया जाता है वो इसी सृष्टि में नहीं, एक शुद्ध सृष्टि और है, अप्रकट सृष्टि जो हमारे यहाँ विद्यमान। ये तो 1/4 है। हम जब वेद पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये तो 1/4 सृष्टि है। 3/4 सृष्टि तो इसके परे है जिसको हम देख नहीं सकते। और वहाँ पे सब शुद्ध आत्माएं हैं, विशुद्ध आत्माएं हैं। वहाँ पे मलेच्छ वृत्ति का रिच मात भी एक तरफ मिश्रण नहीं है। तो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान फेमस हैं। कृष्ण भगवान आज भी धरती पर श्री राम त्रेता युग में आए थे, कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए थे। तो दोनों आज तक फेमस हैं अपनी जो अलौकिक क्रियाओं के कारण, लीलाओं के कारण। जन्म कर्म च में दिव्यम, उनके जो कर्म है वो दिव्य हैं। आज के जो हम कर्म करते हैं वैसे नहीं हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। गुणों के अधीन रह के वो कर्म नहीं करते, वो तो गुणों से अतीत हैं, प्रतीत हैं। गुण उनको टच भी नहीं कर सकते, 3 प्रकार के गुण, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। इसलिए भगवान की जो फेम है
वो जो फेम है वो उनके सच्चिदानंद विग्रह और उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं उसके कारण उनको मिलता है। और विजडम, जो भी थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंट होता है हम देखेंगे इस संसार में फेमस हो जाता है। तो इंटेलिजेंस भी अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र बनती है। लेकिन अब आप भगवद गीता को देखिए, ये कई सालों से चली आ रही है और इसका जो ज्ञान है, इसकी जो विद्या है वो एकदम सटीक है और एकदम हृदय को मतलब भेदती हुई जाती है। तो ये जो विजडम है ये उस सुप्रीम परमेश्वर से ही आ रहा है। और सुप्रीम परमेश्वर से आया हुआ विजडम वो आप देख सकते हैं उनमें कितनी इंटेलिजेंस होगी। आज हम चाहते हैं तो हम एक साइंटिस्ट जो लोग जो हैं वो सैटेलाइट बना देते हैं, या फिर आप ये देखिए ना वैक्सीन बना लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे। साइंटिस्ट की इंटेलिजेंस है। लेकिन आप उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस देखिए जिसने इस सृष्टि की रचना करी, जो धरती को घुमाया जा रहा है पूरे ब्रह्मांड में, इतनी भारी धरती को, जिसको हम सैटेलाइट आते हैं वो भी एक रॉकेट भेजते हैं वो भी ज़मीन पे गिर जाता है। यहाँ पे पूरी धरती कई सालों से लगातार घूम रही है और एक भी फिक्स पॉइंट में जरा सी भी इधर से उधर नहीं होती। हल्की से इधर से उधर आ जाए तो प्रलय आ जाए। तो ये जो जिसकी इंटेलिजेंस इसके पीछे काम कर रही है वो कितना इंटेलिजेंट होगा। हमने वैक्सीन बनाई है, लेकिन जिसने NK सेल्स बना रहा है, जो WBC बना रहा है, जो एंटीबॉडीज़ बना रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो कितना इंटेलिजेंट होगा। तो इससे हम भगवान की इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये तो एक राय के समान है उनकी इंटेलिजेंस की व्याख्या करने के लिए। तो जिनके अंदर ये संपूर्ण इंटेलिजेंस संपूर्णता में व्याप्त है वो कितने आकर्षक का केंद्र रहेंगे। ऐसे ही वेल्थ मतलब श्री। अब आप देखिए भगवान जो है पूरे लोकों के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। तो उनसे ज़्यादा रिच कौन होगा। आप देख लीजिए थोड़ा सा भी जिसमें धन आ जाता है वो कितना अपने आप को वो आकर्षक का केंद्र बन जाता है। खासकर वैश्य समाज के अंदर, आज के ज़माने में हम जो है वैश्य समाज में आते हैं। तो वैश्य समाज में जो है धन जिसके पास अधिक होगा वो आकर्षण का केंद्र बनता है। और भगवान के पास जो है वो तो सारी सृष्टि के मालिक हैं। जब वो सारी सृष्टि के मालिक हैं तो वो सारी रिचेज़ उनकी हैं, सारी जो संपत्ति उनकी है, सारी धरती उनकी है। हम इस पे जो है थोड़े समय के लिए आए हुए हैं। ये मेरा भारत है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा इजराइल है, ये मेरा पैलेस्टाइन है। लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हम कब तक लड़ते मरते रहेंगे यहाँ पे। थोड़े समय के लिए फिर चले जाएंगे यहाँ से, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। कितने ही राजा आए हैं, कितने राजा मरे हैं, सब अपना अपना शासन बनाने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन कोई भी अब पाया नहीं जाता, सब मर गए। ऐसे हम भी आके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं ज़मीन के। लेकिन सृष्टि इस धरती जिसकी है हम उसको भूले बैठे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। इस धरती को हम जान जाएंगे किसकी धरती हमारी है ही नहीं, धरती जिसके लिए हम लड़ मर रहे हैं। ये धरती जिसकी है हम जब उसको सौंपेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तभी हम शांति को भी प्राप्त होंगे, तभी वास्तव में यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन की जो थीम है उसको हम संपूर्ण कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये रिचेस जो है भगवान में संपूर्णता में पाई जाती है। तो थोड़ी सी भी रिचेस इसके पास आ जाए तो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो संपूर्ण रिचेस जिसके पास होगी वो कितना आकर्षण का केंद्र होगा, इसका अनुमान हम लगा पा सकते हैं। ब्यूटी, जो सुंदर होता है वो भी आकर्षण का केंद्र होता है। जिसका थोड़ी सी भी सुंदरता हो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अब हम बात करेंगे परमेश्वर की। परमेश्वर इतने सुंदर हैं कि जितने भी इवन योगी वो जितने ध्यान तप लगाते हैं वो उनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। इवन कामदेव जो है उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सारी सृष्टि जो है कामदेव की तरफ आकर्षित हो रही है और कामदेव जो है वो श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ब्यूटी में भी उनके समान कोई नहीं है, मुझे दूसरा कोई नहीं है सुंदरता में। रिनंसिएशन, वैराग्य, एक वैराग्य जो हम आजकल देखते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी मुसीबतें आई और साधु वेश धारण कर लिया, तो वो वैराग्य वास्तविक वैराग्य नहीं कहा जाता। यहाँ पे आप देखें श्री कृष्ण का वैराग्य, श्री राम का वैराग्य। श्री राम के पास संपूर्ण राज्य था, वो चाहते तो राज कर सकते थे, लेकिन जब प्रॉमिस निभाने की बात आई, अपने पिताजी का जो दिया हुआ जो वादा था वो पूरा करने की बात आई, तो तुरंत सारा राजपाट छोड़ के चले गए, जंगल में जी, एकदम सिंपल लाइफ जी। श्री कृष्ण, उनके पिता जो नंद महाराज थे, वो जो थे वो उस समय के राजा थे वैश्य समाज के। तो उस समय उनके पास संपूर्ण सारी चीज़ें संपूर्णता में थी। और सबसे बड़ी बात, सब प्रेम करने वाली गोपियाँ, वृंदावन,
और जितने अपने माता यशोदा, नंदलाल, प्रेम करने वाले, हमें तो जब लात लगती है घर वालों से तब हम घर छोड़ के भागते हैं, लेकिन वहाँ तो उनको प्रेम करने वाले जो उनके बिना रह ही नहीं सकते, वैसे व्यक्ति वो मौजूद थे। ऐसी आत्माएं मौजूद थी कि अगर श्री कृष्ण के विरह में चले जाएं तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। कहीं कहीं गोपियों ने अपने प्राण त्याग दिए थे श्री कृष्ण के विरह में। तो ऐसे लोगों को त्यागना, ऐसी जगह को त्यागना, ये तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जब संसार की कटुता का हमें ज्ञान हो जाता है, हमें पता लग जाता है ये संसार में इन रिलेशंस में कुछ नहीं रखा है, तो कोई साधु बनता है, वो भी सही है, बन जाना चाहिए, लेकिन उस साधुता में, उस वैराग्य में और श्री कृष्ण और श्री राम के वैराग्य में ज़मीन आसमान का अंतर है। श्री कृष्ण और श्री राम तो संपूर्ण थे, सारी चीज़ें उनके पास थी, फिर भी वो एक जंगल में रह रहे हैं और एक इतने जो प्रेम में और संपूर्णता के जो वृंदावन है उसको त्याग के युद्ध भूमि में जा रहे हैं। तो ये वैराग्य जिसके पास भी होता है वो ये आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इसलिए श्री राम आज भी पूजे जाते हैं, श्री कृष्ण आज भी पूजे जाते हैं। तो ये 6 के 6 ऑपुलेंस जिसके अंदर पूर्णता से विद्यमान है वही भगवान है। और ऐसे श्री कृष्ण ही हैं जिनके बहुत से अंश और कलाएं विद्यमान हैं। श्री राम, श्री विष्णु, श्री नरसिम्हा, ये सब समान हैं। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं जो हमारे वेदों में भी वर्णित है कि अगर हम एक दीप से 100 दीप जलाएं तो सारे दीप समान हैं, लेकिन जिस दीप से सारे दीप जले हैं वो आदि है सब चीज़ों का। इसलिए अनादिर आदिर गोविंदा, गोविंदा ही सबके आदि हैं, लेकिन उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, एक जज होता है और जो जज जो होता है वो घर पे अलग होता है, ऑफिस में अलग होता है और अपने से उनके जो सेवकों के बीच में अलग तरह का होता है। ऐसे ही भगवान भी जो है अपने घर पे, जैसे कि श्री कृष्ण, आप देखेंगे श्री कृष्ण के साथ मित्रता का भाव रखने वाले होते हैं, श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य माधुर्य भाव रखने वाले उनके लोग हैं, तो वो जो है वो श्री कृष्ण हैं। श्री राम में जो है सेव्य तत्व प्रधान है। श्री राम की आप सेवा करना चाहेंगे, जो जिनके अंदर सेवा भाव का है वो श्री राम के पास जाते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण सेम ही, इसलिए लेकिन जो आदि हैं सबके वो श्री कृष्ण बताए गए हैं हमारे पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। मतलब हर युग के अंदर इनके अवतार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो सारे अवतारों की जड़ हैं और सारे अवतार उन्हीं पर ही विद्यमान हैं, उन्हीं से आए हैं। लेकिन उन अवतारों में और श्री कृष्ण में कोई भेद करे तो वो मूर्ख है। उन अवतारों में प्रभुपाद जी बोलते हैं उनमें कोई भेद नहीं है, श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो सेम ही हैं, वो एक ही भगवान हैं जो अलग रूप में आए हुए हैं अपने भक्तों के अनुसार, अपने भक्तों के भाव के अनुसार। इसलिए जो गोविंद हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनके अंदर जो सारे ऑपुलेंसेस हैं वो पूर्णता में विद्यमान है और वो पूर्णता के कारण वो उनका नाम ही श्री कृष्ण पड़ा है, क्योंकि वो संपूर्ण, कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित कर ले, जो सबको आकर्षित कर ले, श्री कृष्ण। और जिनके पास ये 6 ऑपुलेंस पूर्णता में विद्यमान होंगे वो कितने आकर्षण का केंद्र रहेंगे, ये हम इस चीज़ का अनुमान लगा पा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लिव गीता मैसेज। तो आज का जो लिव गीता मैसेज है वो है साकार और निराकारवादी में युद्ध। तो आप देखिए ये लड़ाई है तभी बहुत समय पहले से चलती आ रही है निराकार और साकारवादी में, लेकिन जो धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं उनके बीच में जब युद्ध होता है तो वो शास्त्रार्थ कहलाता है। वो अपने मत रखते हैं, अपने शास्त्रों का एग्जाम्पल निकालते हैं, वहाँ से श्लोक लेके बताएंगे कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, और जो दूसरा है वो भी ऐसे अपने शास्त्र में से निकाल के लाएगा, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, और उनके बीच में फिर शास्त्रार्थ होता है। माराकुटी नहीं होती, तलवारबाजी नहीं होती है। तो बुद्धिजीवियों के बीच में हमेशा शास्त्रार्थ ही हुआ है। धर्म के नाम पर लड़ाई करना, दंगे करना, आतंकवाद फैलाना हमारी जो पहले की जो सृष्टि है कहीं पे भी नहीं है, सनातन संस्कृति में तो कहीं पे भी नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ाई करना, राजाओं के बीच में युद्ध होता रहा है, क्षत्रियों के बीच में युद्ध होता रहा है, वो पहले भी होता आ रहा है और अब भी हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। लेकिन धर्म के नाम पर युद्ध करना मूर्खता कहलाएगी। तो धर्म के नाम पर युद्ध वही कर सकता है जो धर्म को नहीं जानता है। धर्म में शास्त्रार्थ होते हैं कि आप में क्या मत है, दूसरे में क्या मत है, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा। दोनों के बीच में वो अपने श्लोक लेके आएगा, अपना मत लेके आएगा, ये अपने श्लोक लेके अपना मत लेके आएगा, फिर कंक्लूजन निकला जाएगा कि वास्तव में सही
तथ्य क्या है, सही रिजल्ट क्या है, वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो इसलिए बुद्धिजीवों के बीच में जो ब्राह्मण हैं, जो वेदों के जो जानने वाले हैं, वेदों को समझने वाले हैं, उनके बीच में शास्त्रार्थ होता है, युद्ध नहीं होता। और निराकारवादी का जो बेसमेंट जिन्होंने रखा है, जिस मूल जो है वो है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो शिव जी के अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने ही निराकारवादी को लिखा है। तो जब वो क्या बोल रहे हैं हमें वो भी समझना चाहिए। वो बोलते हैं गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन चनाय च वित्तम। मतलब भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो, सुंदर रूप का। तो यहाँ पे साकारवाद बता रहे हैं वो। लेकिन शुरुआत में जो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते उनको पहले निराकारवाद तक लिया जाता है, फिर साकारवाद तक लेके आ जाता है। तो यहाँ पे जो निराकारवादी के जो सबसे जो इनसे बड़ा कोई वो है ही नहीं ऑथराइज्ड, शंकराचार्य से बड़ा कोई ऑथराइज्ड नहीं है निराकारवादी में। तो शंकराचार्य जी जब बता रहे हैं हमको कि हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे बड़ा कोई और प्रूफ नहीं है। दूसरा दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि कुरान के अंदर भी, कुरान में देखते हैं आजकल युद्ध जो है वो मानते हैं कि भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मूर्ति विग्रह के वो विरुद्ध में है। और कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट ने भी बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी थी। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, प्रॉफिट ने बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी थी। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है आप आइडल वर्शिप के विरुद्ध में हो, ठीक है। तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि दूसरा जब आइडल वर्शिप कर रहा है उससे आपके अल्लाह के बीच में क्या कोई डिफरेंस आ जाता है क्या? अल्लाह का जो आपके भगवान अल्लाह जो कुरान में अल्लाह बोलते हैं कि ना तो तुम्हारा मांस मेरे पास जाता है, ना तुम्हारी ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं, मूर्ति तोड़ना उन तो मेरे पास, तुम्हारे पास जाते मेरी धर्मपरायणता, तकवा जाता है। तो उस तकवा क्या इतना कमज़ोर है कि दूसरा तुम थोड़ी कर रहे हो, दूसरा कर रहा है, तो दूसरा कर रहा है तो तुम्हारा तकवे में, तुम्हारी धर्मपरायणता में फ़र्क पड़ने लग जाता है। तुम्हारा उसमें गलती नहीं है, तुम्हारे तकवे में गलती है। कुरान में लिखा गया है साफ साफ कि धर्म के नाम पर कंपल्शन, फोर्सफुली आप किसी को धर्म नहीं अपना सकते। तो इस्लाम के अंदर सब फोर्सफुली एक दूसरे को धर्म अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको फोर्स कर रहा है, कोई वहाँ किसी, कभी लव जिहाद आ रहा है, कभी वो जिहाद आ रहा है, सब फोर्सफुली ये इस्लाम में खासकर हो रहा है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन ये कुरान के अनुसार नहीं है, कुरान के विरुद्ध है। कुरान के अनुसार को धर्म को अपनाने में कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको किसी को मुसलमान बनाना है तो आप अपने तर्क लेके आइए उसके पास, उसको समझाइए, अल्लाह के बारे में बताइए कि अल्लाह तुमसे कितना प्रेम करता है, अल्लाह तुम्हारी हर संरक्षा करता है, ये बताइए उसको। और तब वो अल्लाह के प्रति रुझान हो जाए उसका, जब वो अल्लाह के प्रति मानने लग जाए उसको, तो वास्तविक में वो मुसलमान कहलाएगा। बाहर की ये ड्रेस चेंज कर देना, काला बना देना, वो कर देना, उससे कोई मुसलमान नहीं होता। अंदर से तो वो हिंदू ही रहेगा, चाहे कितने मुसलमान बना लो। और कुरान में भी लिखा गया है कि स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने वाले आस्तिक होते हैं। और जब वो आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, उनको मानते हैं, तो हमें उनकी डीटीज़ को नहीं तोड़ना चाहिए। माना प्रॉफिट ने मूर्तियाँ तोड़ी, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी उस समय, क्या परिस्थितियाँ नहीं रही होंगी, वो हम नहीं जानते। उन्होंने जो तोड़ा बिल्कुल सही किया होगा। हम आज देख रहे हैं कुरान में लिखा हुआ है कि उस समय मनुष्य की बलि दी जा रही थी, बच्चों की बलि दी जा रही थी मूर्तियों के आगे। तो ऐसे में तोड़ना तो लाजिब था। तो लेकिन हमें वो नहीं करना जो वो कर रहे थे, हमें वो करना है जो उन्होंने हमें करने के लिए बोला है। ऐसे तो उन्होंने अपने पुत्र की भी बलि दी थी, आंख में बांध करके गए थे, और पुत्र काटा था तो मेम ना कटा था। तो वास्तव में अगर तुम इतने फॉलोअर, तो फिर ये भी फॉलो करा करो। जब भी बकरा ईद आए तो अपने पुत्र को लेके जाया करो, कपड़ा बांधा करो और फिर जाया करो, उसे काटा करो, होगा तो मेम ना कट जाएगा। अल्लाह में तुम्हारा इतना तकवा रहा तो तुम्हारे बच्चे की मेम ना कटेगा। अगर ये फॉलो नहीं कर सकते तो वो ही करो जो उन्होंने बोला है करने के लिए। तो प्रॉफिट ने कहीं पे भी कुरान में नहीं बोला है कि मूर्तियाँ तोड़ो। भाई आप अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, सारी चीज़ें करो, लेकिन जो दूसरा लग रहा है उसके बीच में क्यों अड़ंगे पैदा करते हैं? वो जो कर रहा है वो अपने स्क्रिप्चर्स के अनुसार कर रहा है। कुरान में भी लिखा है कि स्क्रिप्चर्स के अनुसार जो कर रहा है वो एकदम सही है। वो अपने स्क्रिप्चर्स के अनुसार जब कर रहा है मूर्ति पूजा, तो हमें उसको रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए, कुरान के अनुसार भी। तो यहाँ पे लिव गीता मैसेज यही है कि परमेश्वर के 3 फीचर हैं, एक तो साकारवादी, निराकारवादी और परमात्मा फीचर, और तीनों परमेश्वर के हैं।
तो इसमें युद्ध करने की क्या बात आती है? जो वास्तव में भगवान के फीचर तक पहुंच गया है, वो देख रहा है कोई निराकारवादी तक पहुंच गया है, तो उसको खुश होगा। वो लड़ेगा थोड़ी, वो ये थोड़ी बताने जाएगा अरे भाई तू तो मूर्ख है, आगे वो कहाँ पे अटक गया, ऐसा नहीं बोलेगा वो। जब वो भगवान से जुड़ी हुई किसी चीज़ से जुड़ रहा है तो ये तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, फिर उसके आगे उसको रुकना नहीं है, उसको आगे आगे लेके जाना है, फिर उसको परमात्मा तक जाना है, फिर परमात्मा तक भगवान तक आना है, बस रुकना नहीं है। और यहाँ युद्ध की तो बात ही नहीं आती। युद्ध इस चीज़ के लिए कि तुम मुसलमान बन जाओ, मैं हिंदू बन जाऊँ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। भारी ड्रेस पहनावा चेंज करने से कोई धर्म का चेंज नहीं होता। धर्म चेंज होता है आंतरिक मन परिवर्तन से। अगर वो बदल जाता है तो धर्म अपने आप चेंज हो जाता है, जैसा हरिदास ठाकुर का हुआ, जैसे रसखान का हुआ। ऐसे मुसलमान पाए नहीं जाते अब धरती पर। और ये रसखान जो हरिदास हैं आज के हिंदुओं को मात देते हैं, अड़ते नहीं हम सब कहीं इनके। इन्होंने तो रहस्य पा लिया था, पूरे वेदों का रहस्य तक पहुंच गए थे ये लोग। तो धर्म परिवर्तन और युद्ध करना, लड़ाई करना, मार काट करना, मुसलमान हिंदू, ये एकदम मूर्खता है। ये सब उस परमेश्वर की अनभिज्ञता के कारण हो रहा है। ये जो जानते नहीं है कि सबका परमेश्वर एक ही है, नाम अलग अलग दे रखे हैं। जब नाम अलग अलग हैं और परमेश्वर एक ही है, अब जैसे मान लेना किसी पिता के 5 पुत्र हैं और एक उनको पिताजी बोलता है, एक उनको बापू बोलता है, एक उनको फादर बोलता है, और तीनों बोले भाई नहीं नहीं मेरा तो बापू श्रेष्ठ है, मेरा तो फादर श्रेष्ठ है, मेरा तो पिताजी श्रेष्ठ है। वास्तव में लड़े तीनों के एक ही हैं, लड़ रहे हैं आपस में मूर्खतापूर्वक। तो ऐसे मूर्खों की फौज आज के ज़माने में बहुत अधिक है, जो आपस में इसी चीज़ में लड़ते रहते हैं कि हमारे परमेश्वर, हमारे अल्लाह बड़े हैं, हमारे परमेश्वर बड़े हैं। और वास्तव में वो हैं एक ही, सभी के एक हैं और सभी के लिए वो समान दृष्टि रखते हैं। किसी से ये नहीं बोलते कि तुम लड़ाई करो, किसी को फोर्सफुली अपनाओ। फोर्सफुली अपनाना ना तो हिंदू सनातन संस्कृति में है धर्म के लिए कि आप मेरे धर्म को फोर्सफुली अपनाओ। शास्त्रार्थ करो, अगर आपको उचित लगे तो आप अपनाइए, आपको उचित ना लगे तो आप ना अपनाइए। ऐसे ही कुरान में भी है कि कंपल्शन नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। अगर आपको उचित लगे तो आप मुस्लिम बनिए, अगर आपको उचित नहीं लगता आप मुस्लिम ना बनिए। आप अपनी आइडल वर्शिप करिए, मुस्लिमों को इसमें ना इन्वॉल्व करें। मुस्लिमों के लिए आइडल वर्शिप हराम है तो वो इसको फॉलो ना करे भाई। लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं उसको, उनको तोड़ना, उनकी मूर्ति तोड़ना कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ये कुरान के विरुद्ध है। क्योंकि वो अगर जो दूसरा जो कर रहा है वो स्क्रिप्चर के अनुसार है तो कोई ऐसा नहीं है, ये नहीं बोलता कि मैं कोई सी भी मूर्ति बना दी उसकी पूजा करें, नहीं। स्क्रिप्चर के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होती है, जगह देखी जाती है कहाँ पे मंदिर बने। ऐसा नहीं आज हम देखते हैं कहीं पे भी मंदिर बना दिया, रोडों के बीच में मंदिर बना दिया, वहाँ मंदिर बना दिया, जमीन रोकने के लिए मंदिर बना दिया, वैसे मंदिर नहीं। तो यहाँ पे जो मंदिर बनाए जाते हैं वो पूरे स्थान देख के बनाए जाते हैं, उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा की जाती है और फिर वहाँ पे उनका पूरा अर्च विग्रह के अनुसार पूजन होता है। तो परमेश्वर जब सब जगह विद्यमान है तो मूर्ति में भी विद्यमान है। तो यही इस आज के लेव गीता मैसेज को लेते हुए हम समाप्त करते हैं। सुख शांति पूरे विश्व में बनी रहे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो ये पद है ये सूरदास जी का दिया हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण के चरण कमलों का वर्णन है।
और उनके जो नख हैं वो चंद्रमा के समान बताए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे स्वरूप है, लेकिन स्वरूप में भी हमें दर्शन करने होते हैं, भगवान के दर्शन पाने होते हैं। तो हमें सबसे पहले चरणों पर ध्यान लगाना पड़ता है, फिर उनके वक्ष स्थल पर, और फिर मुखमंडल को देखना होता है। ये तरीका होता है भगवान के दर्शन करने का। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के चरणों का वर्णन है, और जहाँ पे उनके नख हैं उनको चंद्रमा के समान बताया गया है। वहाँ से एक प्रकाश निकल रहा है जो शीतलता प्रदान कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान रखते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज का ये भजन प्रस्तुत है। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं वा कली में, साधन और नहीं वा कली में, जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण।